Dear student, today we are going to start a new topic, that is admission of a partner. What is meant by admission of a partner? When a new person is admitted into a running business with the consent of all the partner, such situation is known as admission of a partner. Whenever a new person is admitted into a running business or into a partnership firm, there are a number of questions which arise one by one. Listen, what are they? Number one and foremost, what will be the new profit sharing ratio amongst the existing partner? Next, who will sacrifice how much share in favor of new partner for sharing profit? Next, what will be the method of valuation of goodwill amongst the partner? Next, how much amount of goodwill should bought by a new partner into the firm? And how the amount will be adjusted amongst the partners? Next question. Accumulated reserves and profits which are kept by the firm before admission. What will be the treatment of such reserves and profits? That is also the question. Who will sacrifice how much share in a favor of new partner? That is also the question. Valuation of all assets and liabilities at the time of admission. These are the questions which we have to discuss before starting the chapter. The first and foremost question was, what will be the new profit sharing ratio amongst the partner? Then how we should resolve this question? As per consent of all partners, existing partner will make sacrifice in favor of new for profit sharing ratio. Number of times the mode of sacrifice will be given in the question. Like A and B are a partner, C is admitted into the firm for 1/4 share in profit, which he acquire equally from A and B. That means 1/4 के लिए वो आया है तो उसका हाफ यानी 1/8 ए देगा, 1/8 बी देगा, और इस तरह से उसका 1/4 शेयर बन जाएगा. Sometimes it is given that A and B are a partner, C is admitted into the firm for 1/5 share in profit. He acquire as in the ratio of 3:2. Then in this question, the share of new partner, that is 1/5, will be divided into the
ratio of 3:2 and calculate the sacrifice made by A and B. That is 1/5 into 3/5 by A and 1/5 into 2/5 by B. And after that, the sacrifice made by the partner will calculate it. Number of times nothing is said about the sacrifice of the old partner in a favor of new partner. In that situation, the ratio between the existing partner will be considered as sacrificing ratio. For example, A and B are a partner sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted C into the firm for 1/4 share and a profit. Then, how the sacrifice made by A and B in favor of C? In this question, nothing is said about the sacrifice. Then we will consider the whole ratio as a sacrificing ratio. The ratio between the partner, that is 3:2, will be considered as a sacrificing ratio in favor of C. Then, how will you calculate sacrificing? 1/4 into 3/5 by A, 1/4 into 2/5 by B. Still, if you will calculate, the ratio will be 3:2. No change. Because when nothing is said about the ratio, sacrificing ratio, then the ratio between the partner always will be the sacrificing ratio. That's why we will calculate the sacrificing ratio, and then the question is the new profit sharing ratio. How will we calculate new profit sharing ratio at the time of admission of a partner? Then, first, remember the sacrificing ratio. Then, new ratio is equal to ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो. यदि हम ओल्ड रेशियो से सैक्रिफाइसिंग रेशियो को माइनस कर दें तो हमारे पास न्यू रेशियो आफ्टर एडमिशन आ जाएगा. जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, A and B are a partner sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted into the firm for 1/4 share in a profit, which he acquired equally from A and B. Equally, that is half. तो सबसे पहले हम 1/4 के दो टुकड़े करेंगे, हाफ. 1/4 इंटू हाफ करेंगे तो 1/8 फ्रॉम ईच आएगा, 1/8 फ्रॉम A and 1/8 फ्रॉम B. एंड दैट सिचुएशन, जैसे कि अभी आपको फार्मूला बताया गया है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो. देन ए का न्यू शेयर क्या होगा? ए का ओल्ड शेयर है 3:2 बोला था, तो 3/5. सैक्रिफाइस कितना कर रहा वो? 1/8, तो माइनस 1/8. तो 3/5 माइनस 1/8 करेंगे, जो भी शेयर आएगा वो हमारा ए का न्यू शेयर होगा. बाय सेम पोजीशन बी विल कैलकुलेट शेयर फॉर बी. बी का ओल्ड शेयर 2/5 है. देन 2/5 एंड बी आल्सो सैक्रिफाइस 1/8 माइनस 1/8. 2/5 माइनस 1/8 करने से जो भी बचेगा वो बी का न्यू शेयर होगा. एंड सी जो ऑलरेडी 1/4 के लिए आया है उसका शेयर 1/4 ही रहेगा.
यदि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं हो रहे हैं तो उसको सिर्फ इक्वल डिनोमिनेटर पर लाकर छोड़ देंगे, लेकिन उसका शेयर चेंज नहीं होगा। वो 1/4 के लिए था, 1/4 के लिए है, 1/4 के ही लिए रहेगा। That is the way by which we will calculate the new ratio at the time of admission if nothing is said. Then how will we calculate new ratio? When nothing is said, अभी आपको बताया है कि the ratio between the partner will be considered as SR, sacrificing ratio. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो रेशियो पार्टनर के बीच में है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ आपको, ए एंड बी आर अ पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. C is admitted into the firm for 1/4 share in profit. Calculate new ratio. अब आप न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? देन फर्स्ट एज्यूम द टोटल शेयर एज 1. आप मान लीजिए कि आपका जो फर्म का कुल शेयर है वो 1 है। 1 - 1/4 करेंगे तो बचेगा 3/4। अब ये 3/4 क्या है? रिमेनिंग शेयर आफ्टर एडमिशन। आपने सी को एडमिशन दिया 1/4 के लिए। सपोज़ आप 1 रुपया कमाएंगे तो सी को 1/4 यानी 25 पैसे दे देंगे। उसके बाद आपके पास बचता है 3/4 यानी कि 75 पैसे। क्योंकि सैक्रिफाइसिंग के बारे में बोला नहीं गया है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करोगे। द रेशियो बिटवीन द पार्टनर विल बी कंसिडर्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आप क्या करेंगे? 3/4 को ओल्ड शेयर में पार्टनर में बांट देंगे। द न्यू शेयर ऑफ ए 3/4 × 3/5, न्यू शेयर ऑफ बी 3/4 × 2/5 एंड न्यू शेयर ऑफ सी ऑलवेज 1/4। लेकिन डिनोमिनेटर 20 जाएगा सभी का, इसलिए सी को भी 20 पर लाने के लिए 5/5 का इंटू कर देंगे, तो सी का शेयर हो जाएगा 420। इस तरह से जब कुछ भी नहीं कहा जाएगा तो आप पार्टनर्स का न्यू शेयर निकाल लेंगे। याद रहेगा, when nothing is said about the sacrificing share of the existing partner, then we will assume the total share, माइनस करेंगे न्यू पार्टनर का शेयर, जो बचेगा उसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में, और सभी के डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे, न्यू रेशियो आ जाएगा। Sometimes sacrificing ratio given in the question. For example, question is that A and B are a partner sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted into the firm for 1/4 share in profit, which he acquired in the ratio of 2:3 from A and B. 2:3 यानी 2/5 A देगा, 3/5 B देगा। In that question, first you should calculate the sacrificing ratio. How will you calculate? A sacrifices is equal to 1/4 into 2/5. 1/4 into 2/5 करोगे 220 आएगा। B sacrifices 1/4 into
5, 320 आएगा। अब इस 320 को जो सैक्रिफाइसिंग आया 320, 220, 220 फॉर ए, 320 फॉर बी, इसको आपको माइनस करना होगा ओल्ड शेयर से ओल्ड पार्टनर के। फार्मूला क्या रहेगा? न्यू रेशियो इजकल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देन एज न्यू शेयर इजकल टू ए का ओल्ड रेशियो कितना था 3:2 यानी 3/5, 3/5 माइनस 2/20, 220 क्या है? सैक्रिफाइसिंग, 3/5 क्या है? ओल्ड रेशियो। फार्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो से सैक्रिफाइसिंग रेशियो को माइनस कर दीजिए, यानी कि 3/5 माइनस 2/20 कर दीजिए। एलसीएम 20 ही आएगा। एलसीएम 20 लेकर ऊपर माइनस का साइन लगाइए, माइनस कीजिए, जो शेयर बचता है वो ए का न्यू शेयर होगा। सेम तरीके से वी का न्यू शेयर, वीज न्यू शेयर इजकल टू वी का ओल्ड शेयर था 2/5 और वी सैक्रिफाइस कर रहा था 3/20, देन वीज न्यू शेयर इजकल टू 3/5 माइनस 2/5 माइनस 3/20। ओल्ड रेशियो 3:2 था तो 2/5, सैक्रिफाइसिंग निकाला था हमने 1/4 इंटू 3/5, 3/20। ओल्ड रेशियो से सैक्रिफाइसिंग को माइनस कर दीजिए, आपका बी का न्यू शेयर आ जाएगा। सेम तरीके से सी का शेयर लेंगे, 1/4 के लिए था, 1/4 के लिए है, 1/4 के लिए रहेगा। सिर्फ एलसीएम 20 जा रहा है हाईएस्ट, इसलिए सी को भी 20 करने के लिए 5/5 से इंटू कर देंगे। आपका न्यू रेशियो ए बी सी तीनों का आ जाएगा। एक सिचुएशन और बनती है, when the sacrificing share given in the question listen the question, write the question. A and B are a partner sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted C for 1/4 share in a profit which he acquires as 325 from A and 225 from B. $325 एंड 225 मिला के 525, यानी कि 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। सी का शेयर 1/5 मान लेते हैं। A and B are a partner sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted C for 1/5 share in a profit which he acquired as 325 from A and 225 from B. In that question, this 325 and 225 is the sacrificing share in favor of new by old. In this situation, you are not required to calculate sacrificing share because the sacrificing share given in the question. How will you calculate the new ratio? The new ratio will be calculated directly by putting the formula old ratio minus sacrificing share. That is NR is equal to OR minus SR. NR new ratio, OR old ratio, SR sacrificing ratio. Then A's new share is equal to 325 minus, A's new share is equal to 3/5 minus 325. LCM 25 ही आएगा।
माइनस का साइन लगाइए, माइनस कीजिए, जो भी शेयर आपका बचता है वो ए का न्यू शेयर होगा। सेम तरीके से बीज न्यू शेयर इजकल टू बी का ओल्ड शेयर 2/5 sacrifice 225, then 2/5 minus 225 LCM 25, माइनस का साइन लगाइए, जो शेयर बचता है वो वी का न्यू शेयर होगा। नंबर ऑफ टाइम्स द न्यू पार्टनर्स शेयर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अभी तो मैंने बोल दिया था आपको कि सी का शेयर 125 है, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स सी का न्यू शेयर इन दैट सिचुएशन इज नॉट गिवन। तो हाउ विल यू कैलकुलेट सीज शेयर? 325 is given by A, 225 is given by B, then 325 plus 225 is equal to LCM 25 प्लस का साइन लगाइए, 3 + 2 525, तो 525 यानी कि 1/5 शेयर सी का होगा। यदि दिया है सी का शेयर देन ओके, नहीं दिया है तो जो सैक्रिफाइस करेंगे ओल्ड ए और बी इन फेवर ऑफ सी वही सी को मिलेगा। ए सैक्रिफाइस कर रहे हैं इसलिए उनके शेयर से माइनस होता है, क्योंकि वो सी को दे रहे हैं इसलिए सी को प्लस होता है। These are the situation under which we calculate the new share of the partners at the time of admission. Now the topic is over regarding share of a new profit ratio. आपको समराइज कर देते हैं, की पॉइंट्स दे देते हैं। हमने 4 सिचुएशन एवेल्युएट की हैं। नंबर 1, जब बोला गया था कि सी एडमिशन ले रहा है 1/4 के लिए, वो इक्वली एक्वायर करेगा ए और बी से। इन दैट सिचुएशन हमने क्या किया, 1/4 को इक्वल कर दिया, 1/8 आया, ए से 1/8 लिया, बी से 1/8 लिया। दैट वाज द फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में हमने बोला था व्हेन नथिंग इज सेड अबाउट द सैक्रिफाइसिंग शेयर देन द ओल्ड शेयर विल बी कंसीडर्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन दैट सिचुएशन देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन दैट सिचुएशन आपको टोटल शेयर एज्यूम करना है 1 में से माइनस कर देना है न्यू पार्टनर का शेयर, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर करके जो बचेगा उसको ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। ये आपकी सेकंड सिचुएशन थी। अंडर थर्ड सिचुएशन मैंने आपको क्वेश्चन बोला था कि रेशियो दिया रहेगा शेयर से रिलेटेड। ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट विच ही एक्वायर इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो अब ये रेशियो दिया है, जब भी कभी रेशियो दिया रहे तो हमारे लिए पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर ही निकालना पड़ेगा। बगैर शेयर निकाले न्यू रेशियो आने वाला नहीं। पहले आप शेयर निकालें, सैक्रिफाइसिंग 1/4 into 3/5 फ्रॉम ए
1/4 इंटू 2/5 फ्रॉम बी। जब आप सेक्रीफाइस शेयर निकाल लेंगे तब जाके आप उसको माइनस कर पाएंगे ओल्ड रेशियो से, और जब माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो से तभी आपका जाके न्यू शेयर आएगा। दिस वाज द थर्ड सिचुएशन। एंड अंडर फोर्थ सिचुएशन हमने आपको बोला था A and B are a partner, they sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/5 share in a profit which he acquired as 225 from A and 325 from B. ये 225 and 325 जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। एंड इन दैट सिचुएशन आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना नहीं है, डायरेक्ट माइनस करना है फार्मूला लगा के, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। तो ए के ओल्ड रेशियो से 3/5 माइनस 2/25, बी के शेयर से 2/5 माइनस 325 करेंगे, जो भी शेयर बचेगा वो आपका न्यू रेशियो होगा। सी को इक्वल डिनोमिनेटर ज़रूर करना है तो इंटू 5/5, 1/4 इंटू 5/5 कर देंगे। इस तरह से आपकी रेशियो की चारों सिचुएशन की ब्रीफिंग होती है। इसके बाद आपको क्वेश्चन करना होंगे, लेकिन जो भी आपको की पॉइंट्स दिए गए हैं उनको आपको याद रखना है। अब इन शॉर्ट, हाउ कैन बी मेमोराइज all the condition of calculating new profit sharing ratio amongst the old partner, or you can say after admission how will be calculate the new ratio। तो बिल्कुल समरी में आपको 4 लाइन दे रहा हूँ। चारों लाइन को जब जब आप रिवाइज करेंगे आपको पूरी सिचुएशन रिवाइज हो जाएगी। या तो आपको इक्वली दिया है तो आपको टुकड़े कर देना है हाफ करके, या आपको कुछ नहीं दिया है तो आपको 1 माइनस न्यू शेयर करके जो बचता है उसको बांटना है, या आपको शेयर दिया हुआ है तो पहले सैक्रिफाइसिंग ऑफ लगा रहेगा, OF हाफ, तो आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर पहले निकालना है उसके बाद न्यू रेशियो निकालना है। या फिर क्वेश्चन में फ्रॉम दिया रहेगा, तो आपको सीधे माइनस कर देना है, सैक्रिफाइसिंग शेयर नहीं निकालना है। सैक्रिफाइसिंग शेयर किस किस कंडीशन में निकालना है? व्हेनेवर इक्वली गिवन, whenever ratio given, and whenever off given. How is off given? 320 A and B are a partner sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/4 share of which he acquired 3/8 from A and 1/8 from B. फ्रॉम दिया रहेगा, आप सीधा माइनस कर देंगे। एक सिचुएशन और आती है जिसमें आपको ऑफ दिया रहेगा। सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर। ही एक्वायर्ड एज of 2/20 from A and 2/20 from B। 420 ले रहा, 1/4 ले रहा। इन दैट सिचुएशन आल्सो आपको ऑफ दिया है, माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद आप न्यू रेशियो निकालेंगे। तो ये आपकी तमाम कंडीशंस थी न्यू रेशियो की।
इसी बेस पर आपको सवाल सॉल्व करना होंगे। ओके।